Good morning, student. Welcome back to electronics class. This is the lecture number 2, and in this class we will discuss type of semiconductor and their property. यानी semiconductor कितने टाइप के होते हैं, extrinsic, intrinsic, and how when we added impurity. Okay, so then the again extrinsic is classified as N type and P type. We will discuss these all terms in today's lecture. So in last lecture, what we have discussed what is the difference between metal semiconductor and the insulator, and the term needed for this definition. We have to require mobility, conductivity and resistivity. So we have already defined these all terms. Then we differentiate these conductor, insulator and semiconductor on the basis of resistivity, forbidden energy gap, number of free electron and the temperature coefficient. Okay, and now we are discussing the type of semiconductor and their property. Okay, so semiconductor are two types. One is intrinsic semiconductor. Intrinsic means pure semiconductor material is known as intrinsic semiconductor material. As we have written here, a pure semiconductor having 4 electrons in outer layer is known as pure semiconductor. So here we have taken the example as germanium and the silicon. While if we add some impurity into the semiconductor, then semiconductor is known as extrinsic semiconductor material. Okay. Intrinsic बहुत तरह के होते हैं. Why we have taken this germanium and silicon? The reason is, first is easily available. Easily available है. Second जो रीजन है, in purified form can be easily be convert into the purified form. Second point is convert easily into pure form. And third form, why we are using the semiconductor for conductivity and flow of the current and other property. तो हमें characteristics change करनी है. So if we want to change the characteristics, either increasing the temperature or by increasing the voltage, we can easily convert its property. So third point हमें क्यों use करना है? Easily can be convert its characteristics. ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इजी से चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. डीप में जाने से पहले, ठीक है, अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें कि प्योर सेमीकंडक्टर के किस तरह का होता है. सो व्हाट वी हैव सेड दैट ए प्योर सेमीकंडक्टर मेनली हियर शोन द सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर ऑर्बिट. ओके, ये क्या करता है? इट्स नियर बाई सिलिकॉन एटम के साथ ये क्या बना लेता है? कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये स्टेबल स्टेट में आना चाह रहा है. तो इसकी आउटर लेयर में ये टोटल के टोटल क्या है मेरे? 8 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फर्स्ट कि इन मेटल इलेक्ट्रॉन आर इन फ्री स्टेट, वाइल इन सेमीकंडक्टर देयर आर द कोवैलेंट बॉन्ड. यानी यहां पे क्या है जी? पहले ये कोवैलेंट बॉन्ड है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस. सो अगर हम सेमीकंडक्टर में बात कर रहे हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड है. सेकंड, यहां हम हाउ द इलेक्ट्रॉन एंड द होल. ओके, सो इलेक्ट्रॉन एंड होल को डिफाइन कर रहे हैं. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं और वी प्रोवाइड सम वोल्टेज, किसी भी वजह से, सपोज वी आर प्रोवाइडिंग सम एनर्जी, this covalent bond is break. ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री. जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो रहा है, ठीक है, तो
दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री एंड कैन मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल, तो इनको हम क्या क्या चल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड इन द एब्सेंस ऑफ दिस कोब इलेक्ट्रॉन, यानी अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां एक कैविटी क्रिएट होती है एंड दिस कैविटी इज नोन एज द होल। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन एंड इन द एब्सेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द होल। ओके, सो दीज आर द टू चार्ज कैरियर। तो अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें फॉर द फ्री प्योर सेमीकंडक्टर, तो किस तरह से है, तो इन प्योर सेमीकंडक्टर we always represent a conduction band and second is the valence band and between them we are showing a forbidden energy gap Eg। बैलेंस बैंड क्या है, बैलेंस बैंड इज द एनर्जी लेवल, ध्यान रखना है दीज ऑल आर द एनर्जी लेवल, चाहे कंडक्शन बैंड की बात करें चाहे हम बैलेंस बैंड की। बैलेंस बैंड इज द एनर्जी लेवल in which electron or hole is associated with its parental atom, यानी ये parental atom से जब अटैच है तो उस समय जो इसकी एनर्जी है उसको हम बैलेंस बैंड कह के चल रहे हैं। कंडक्शन बैंड व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रेक, कोवेलेंट बॉन्ड मेरा ब्रेक होता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन आर इन फ्री स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है तो हम क्या क्या चला, इलेक्ट्रॉन कहाँ है जी, मेरे कंडक्शन बैंड है। एंड दिस इज द एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक और टू डिटैच एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स पेरेंटल एटम, उसको हम क्या क्या चल रहा है, फॉरबिडन एनर्जी का है। तो अगर हम सिलिकॉन के केस में बात करें तो दिस एनर्जी जो हमें रिक्वायर चाहिए, दिस इज 1.1 for electron volt for the 1.1 electron volt in case of silicon and in case of germanium this is an 0.72 electron volt, मुझे इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मीन्स 300 डिग्री 300 केल्विन कह रहे हैं, या T इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, so this is the structure of the pure semiconductor. Now second one is the extrinsic semiconductor। तो extrinsic क्या कह के चल रहा है, when we add some impurity, अगर हम कुछ impurity add कर दें, add some impurity, then semiconductor is known as the extrinsic semiconductor। तो यहां देंगे extrinsic semiconductor are again two type, one is donor, donor means if we add the pentavalent impurity, donor का मतलब है pentavalent impurity। ठीक है, हम impurity जो ये ऐड कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर में आइदर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, तो ये जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक्स एंड एंटीमनी, दीज ऑल पार्टिकल ऑल हैव द 5 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर लेयर, तो उसे हम डोनर इंप्योरिटी कह रहे हैं। थर्ड वन इज द सेकंड वन इज द एक्सेप्टर इंप्योरिटी, यानी दिस इज एन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवेलेंट मतलब जिनके आउटर लेयर में 3 इलेक्ट्रॉन है एंड दैट आर द बोरोन, गैलियम, इंडियम, दीज आर द ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। तो प्योर सेमीकंडक्टर व्हेन वी एडेड इंप्योरिटी दैट इज एन एक्सट्रिंसिक। इंप्योरिटी जो ऐड करनी है डोनर और एक्सेप्टर इंप्योरिटी। इफ यू आर एडिंग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी देन एटम इज नोन एज डोनर, and if you are adding trivalent impurity it is known as the acceptor impurity। ठीक है, तो यहां देखो कि इसे हम डोनर क्यों कह रहे हैं और इसे एक्सेप्टर क्यों कह रहे हैं। तो डोनर हमने क्या कहा है, इट हैज पेंटावेलेंट, जैसे सपोज we take the example of phosphorus, so phosphorus has 5 आउटर लेयर इलेक्ट्रॉन, और इसे सपोज मैं एक सिलिकॉन मेटेरियल में डाल दूं तो इसके चारों तरफ एक तरह से मेरे क्या है, सिलिकॉन है। तो ये क्या करेगा, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये क्या कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा इजिली। ठीक है, बट इट्स 5th इलेक्ट्रॉन, दिस इज
दिस इज रिक्वायर वेरी लेस एनर्जी टू डिटैच फ्रॉम दिस एटम। तो हम क्या कर रहे हैं, जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो एक तरह से मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। जैसे हमने कहा था प्योर सेमीकंडक्टर में जब मुझे कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए रही थी वो कितनी थी, दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के केस में कितना था, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट व्हेन वी एडेड दिस इम्प्योरिटी, इफ वी वांट टू डिटैच दिस एटम, तो अगर मैं जर्मेनियम के केस में बात करें, वी रिक्वायर ओनली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फॉर सिलिकॉन दिस इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। केवल इतनी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर इफ वी गिव सम एनर्जी, एनर्जी देते हैं डिस्चार्ज होगा, तो यहां पे क्या है, दिस फास्फोरस दिस इम्प्योरिटी प्रोवाइड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या करता है, डोनेट कर सकता है। देयरफॉर इट इज नोन एज द डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है। स्टेबल स्टेट में आ गया 444 आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज एन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसे हम डोनर इम्प्योरिटी कह रहे हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल मेरे क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि जितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उतने ही होल होंगे। तो इन प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल, जबकि इन केस ऑफ डोनर इम्प्योरिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मेरे इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल। So when you are adding the donor impurity, it not only increase the number of electron, but it also decrease the number of hole. क्यों? क्योंकि देखो प्योर जब आपने डोनर इम्प्योरिटी ऐड की तो जितने भी हमारे होल्स हैं तो वहां रिकॉम्बिनेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी दिस इलेक्ट्रॉन में फिल द बैलेंसी बैकेंट गैप, और वैकेंसी को वो क्या है, मेरी होल है, तो उसको अगर गैप कर फिल करते हैं तो होल डिक्रीज करते हैं। तो इन डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन आर इन मेजॉरिटी व्हाइल होल आर इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट। नाउ सेकंड वन इज द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर व्हेन वी आर एडिंग द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोरोन, इंडियम एंड द गैलेनियम, तो हम क्या क्या चल रहे हैं, इसके आउटर लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो जैसे अगर मैंने कोई सिलिकॉन लिया तो सिलिकॉन के ये और अराउंड सभी एटम के साथ ये क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन यहां एक वैकेंसी रह गई, ठीक है, बिकॉज इट हैज द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस वैकेंसी कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर कोवेलेंट बॉन्ड और द फ्री कैरियर। तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए इसको हम क्या कह के चल रहे हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कह के चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एंड सेकेंड पॉइंट इज बिकॉज when we add the trivalent impurity in the pure semiconductor, here number of hole are in majority, यानी चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में कौन से रहते हैं जी, होल, जबकि माइनॉरिटी में कौन से रहेंगे जी, मेरे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इंक्रीज कर रहा है तो रिकॉम्बिनेशन रेट फिर इंक्रीज करती है। सो when we add the trivalent impurity in the semiconductor, it does not only increase the number of hole, ये तो इंक्रीज ही नहीं करता, but the number of electron मेरे क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। सो दैट इज एन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल, ओके। तो बस एक एनर्जी बैंड डायग्राम से और शो करें, तो जैसे हमने कहा था प्योर जब सेमीकंडक्टर है उसके केस में एनर्जी गैप हम किस तरह से दिखा के चलते हैं, कंडक्शन बैंड एंड द बैलेंस बैंड, एंड दिस इज माय एनर्जी गैप Eg। बट इन केस ऑफ
डोनर इम्प्योरिटी, यानी अगर मैं डोनर डाल रहा हूं तो मेरे एक्सेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो एनर्जी बैंड है, यानी दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द बैलेंस बैंड। तो जो लेवल है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है डोनर का, ईडी यहाँ। जैसे हम जो क्या कह चल रहे, दिस एनर्जी इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द सिलिकॉन। यानी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही मैं उसे इतनी एनर्जी मिलती है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, मेरे कंडक्शन बैंड में। तो इस लेवल एनर्जी स्टेट को हम ईडी कह के चल रहे हैं। जबकि हम अगर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का केस दिखा के चले तो उसमें एक्सेस में मेरे होल्स हैं। तो यहाँ दिस इज माय बैलेंस बैंड, दिस इज माय कंडक्शन बैंड। यानी जो लेवल दिखा के चलना है एक्सेप्टर का वो कहाँ दिखा के चल रहा है, ये यहाँ। यानी इट कैन, ठीक है, टेक द होल, मतलब एक तरह से कहाँ आ जाएगा, मेरा ये एनर्जी लेवल है, ठीक है। इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड, यानी ये जैसे ही एक्सेप्ट कराएगा मेरा फिल होगा, तो ये मेरा एनर्जी लेवल यहाँ से हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द ट्राइवेलेंट एंड द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म और लॉ, दैट इज मास एक्शन लॉ, ठीक है। इन प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल इक्वल टू द नंबर ऑफ होल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स के इक्वल होते हैं। बट व्हेन वी एडेड द इम्प्योरिटी, तो यहाँ एक टर्म लिखना है, एडिंग एन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी डिक्रीज द नंबर ऑफ होल। क्यों? रिकॉम्बिनेशन रेट इंक्रीज करेगी इन एन टाइप मटेरियल, इलेक्ट्रॉन आर majority charge carrier, therefore if recombination rate is increased it will decrease the number of hole। and doping of p type material यानी trivalent हम impurity लेके चल रहे हैं, decrease the concentration of free electron। so therefore हम क्या कह के चल रहे हैं, the product of negative and positive concentration remain constant and independent to the donor and acceptor impurity। यानी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन हम ni स्क्वायर की बात करें, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल एंड द प्रोटॉन, ठीक है। तो बस अगर एन टाइप मटेरियल है तो ni स्क्वायर यानी कितना होगा, nn इंटू पी एन। nn जो है मेजोरिटी में है, ये माइनॉरिटी में होंगे। जबकि अगर पी टाइप मटेरियल लेके चल रहा है तो ni स्क्वायर कितना होगा, np इंटू पीपी, पीपी रिप्रेजेंट द पी टाइप इम्प्योरिटी। तो इसके केस में जो होगा, दिस इज इन मेजोरिटी एंड दिस इज इन माइनॉरिटी, mi, ठीक है। इन एन टाइप दिस इज इन मेजोरिटी एंड दिस इज इन minority। so this is my mass actions law, clear? Okay, so today we will stop here। so in today class what we have discussed, so in today class we have discussed about type of semiconductor and their property। so first type of semiconductor are two type, intrinsic and extrinsic। pure semiconductor is intrinsic and when we are adding impurity extrinsic, ठीक है। Then we have shown a configuration of the pure semiconductor, then concept of the electron and hole, and energy Venn diagram of pure semiconductor। Then we have discussed about the donor type of impurity, or this is also known as pentavalent impurity, and material is known as the n-type material। n-type means number of electron is large in donor type of impurity। second we have talked about the p type of impurity and material is known as the p type semiconductor, ठीक है। तो वो semiconductor p type semiconductor कहलाता है, okay। and then we discuss about the mass actions law, okay। thank you।